बच्चा जब छोटा होता है उसका काम सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, एवरी पेरेंट इज डिफरेंट. सो वो चीज़ें हमको ध्यान देनी पड़ती है. इट्स नॉट लाइक देयर इज राइट और रॉन्ग पेरेंटिंग, बट यू हैव टू जस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स. When we talk of safe environment, how does a parent ensure that there is a safe environment, or what could be the concept of a safe environment? Every parent wants to raise a successful, confident, happy child. Correct. So that there is a very thin line in between कि ओवर पेरेंटिंग क्या है, पेरेंटिंग क्या है. चाइल्ड के लिए ट्रॉमा मतलब अर्थक्वेक, वॉर, ये सारी चीज़ें नहीं होती. इट कैन बी बिट ऑफ बुलिंग ऑल्सो. पेरेंटिंग मतलब दोनों मिलके है. वहाँ पे अगर कुछ हो रहा है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ध्यान रखना. Now nowadays one common problem is being observed, maybe कम या ज़्यादा मात्रा में दिखता होगा, is the problem of over parenting. पेरेंटिंग है, ओवर पेरेंटिंग है. बच्चा कितना उसमें खुश है, कितना ही इज फ्लरिशिंग, हाउ मच ही इज एंजॉइंग हिज लाइफ, हाउ मच इज एंजॉइंग हिज होमवर्क एज वेल. दैट वी हैव टू सी. इट डजंट हैव टू बी अ स्ट्रेस. So hello, namaste, welcome to episode 18 of Dr. AB's Podium, Learnings and Insights to Podcasts. I am Dr. Aditya Bawdekar here. Today we'll be discussing on a very interesting and a very important topic, which will be about mental health. इस topic के बारे में awareness spread करना is the whole objective. इसमें कई सारे issues के बारे में discussion किया जाएगा. My appeal to people who are going to be watching this is do watch this with an open mind, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि our kids they are going through a lot of issues sometimes, or we also undergo a lot of issues. Idea is to create a series of 2 or 3 different episodes and discuss on issues for various different age groups, because fitness या physical fitness का तो हम बहुत ध्यान देते हैं, but when it comes to the fitness of the mind, sometimes we take it for granted. तो ये ना हो, इसके लिए this is my initiative to discuss on these particular topics, open up doors for discussion, open up doors for conversation, and spread more and more awareness of this. I hope you like this. Please subscribe to our channel. वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों के साथ अपने शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट एंड लेट अस नो व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स यू वुड लाइक टू लिसन टू, सो दैट मैं गेस्ट आपके लिए उस तरीके से मैं आपके साथ लेके आऊँगा. नाउ माय गेस्ट टुडे ओवर हियर इज डॉक्टर प्रणवजीत कल्दाटे. He has a strong experience in providing services in healthcare, in de-addiction, dementia, various issues which are pertaining to mental health. So, welcome, Dr. Pranavjeet, and it's a pleasure having you on my discussion today. Welcome, sir. So, my first question is, when we talk of personality development in kids, what could be those key stages of personality development, say in the age groups between 10 to 18? Right. So first of all, thank you for taking this initiative. This is a very stigmatized topic, mental health and everything. Things are changing, but we need to talk more about it. So when we talk about mental health and when we talk about mental health in children, so that is one of the factors that is being ignored a lot, right? Because it is shown as it is temper tantrum, एज के हिसाब से ही है, एज का ही फैक्टर है. बट उसके साथ साथ वी नीड टू नो दैट व्हेन यू टॉक अबाउट साइकोलॉजी, वो स्टार्ट होती है व्हेन द किड इज़ इन द वोम एंड इट्स एंड्स व्हेन यू आर इन द टोम, राइट? सो वोम टू टोम जो जर्नी होता है, ये इवोल्यूशन का प्रोसेस है. तो आपकी पर्सनैलिटी कम्प्लीटली इवॉल्व होती रहती है. एट सर्टन पॉइंट से कुछ लोग 25, 30, 35 तक उनकी पर्सनैलिटीज़ रिजिड होना शुरू हो जाती है. दे आर नॉट ओपन टू एडेप्शन और समथिंग, कि चेंजेस आ रहे हैं तो हमको उस हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा. एंड दैट्स लेटर ऑन वी कॉल इट जनरेशन गैप आ गया है. लोग समझते नहीं है हम क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, बहुत आगे चले गए. ये सारी चीज़ें ऐसे शुरू हो जाती है. उसका इम्पैक्ट बच्चों पे आता है. बच्चा जब छोटा होता है उसका काम सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है. ही इज़ नॉट लर्निंग एनीथिंग, ही इज़ ऑब्जर्विंग, फॉलोइंग दैट, ही इज़ टेस्टिंग इट एंड ही इज़ टेस्टिंग योर पेशेंस ऑल्सो, कि क्या करने पे मुझे क्या मिलता है, राइट? सो जब पर्सनैलिटी की बात होती है, वी से दैट जैसे ही बच्चा पैदा होता है, वी से दैट कि ये माँ पे गया है, ये पापा पे गया है. क्यों? जेनेटिक्स, राइट? नाक पापा जैसी है, ये जैसा है. थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, गुस्सा करने लग जाता है, अरे माँ के जैसा गुस्सा है, पापा की वजह से गुस्सा है. वी स्टार्ट लेबलिंग देम फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, एंड इट्स नॉट दैट दे डोंट नो, कळत नाही त्यांना और समझ में नहीं आता, बच्चे हैं, राइट? बट उनको समझ में आता है. They know it's a negative remark, or they know that they are comparing me to that particular thing, or they are labeling me. So वहाँ से वो शुरू हो जाता है और वहाँ से वो शेप होना धीरे धीरे शुरू हो जाती है.
and if you don't get a safe environment at home, when I say safe environment, वो बाहर जाते हैं बाय अभी लाइक यू सेड 3 साल का है तो स्कूल चला जाता है, सो सोसाइटी का एक्सपोजर वहाँ से शुरू हो जाता है, पियर्स, अदर पेरेंट्स, अदर टीचर्स जो जो क्या करते हैं उनका एक्सपोजर उनको शुरू हो जाता है, दे स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देयर ऑल्सो, right? So what happens is when they are overwhelmed with a outside world stimulus, then they come home, and if they don't find that safe space, तो वो withdrawn होना, irritability, anger, tantrums, ये सारी चीज़ें, because they don't have the vocabulary to explain what they are going through. Okay. They are just feeling all those things, right? तो फिर वो कहाँ से आएगा? That will come from the behavior, and we misinterpret most of the time because there is no parenting guide as such. Correct. आनी चाहिए पर अभी आई भी है कहीं, बट यू डोंट नो हाउ रिलेवेंट इट इज़ बिकॉज एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, एवरी पेरेंट इज़ डिफरेंट. तो उसमें क्या हो जाता है कि उनकी पर्सनैलिटी फॉर्म होना शुरू हो जाती है, उनके ट्रेड्स वो कैच करना शुरू हो जाते हैं, एंड व्हेन दे ग्रो अराउंड 8-10 probably they start testing their those theories, those things outside the world, और फिर वहाँ पे कभी कभी उनको आइडेंटिटी क्राइसिस होना शुरू हो जाता है. सो जो हम कभी कभी बोलते हैं कि पहले बच्चा ऐसा था अभी ऐसा हो गया है, सो मे बी ही इज़ हैविंग इश्यूज, बाहर कुछ है जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, या ही इज़ नॉट एबल टू अडेप्ट टू दोज थिंग्स. तो वो पर्सनैलिटी धीरे धीरे करके जब बिल्ड होती है तो वो आगे चल के फिर हम बोलते हैं कि हाँ ये इस टाइप का है, ये इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, इसका स्वभाव ऐसा है. सो वो चीज़ें हमको ध्यान देनी पड़ती है. इट्स नॉट लाइक देर इज़ राइट और रॉन्ग पेरेंटिंग, बट यू हैव टू जस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स. Two questions I'll ask you. You mentioned about something called as a safe environment at home. A. And B, very rightly said that the kids are not able to explain because उनकी vocabulary नहीं है वो. राइट. They don't have the right kind of words, or they don't know the right kind of mannerisms in which it has to be explained to the parents. Now, obviously, it becomes very important as parents that the ball is in their court. कि जो भी whatever is happening, it has to be understood. A lot of things will be on judgments and the understanding of the parents by themselves. So my first question is, when we talk of safe environment, how does a parent ensure that there is a safe environment, or what could be the concept of a safe environment? And secondly, what kind of signals or what kind of triggers would be there as parents, that they can understand whether their child is really facing any problem or is not able to express. What could be those signals? Right. So first thing कि when we call safe environment, safe for expression of their emotions, safe for expression of their behavior, and still being liked by their parents. कि मैं ऐसा हूँ, मैंने ऐसा ऐसा किया, they still love me. Okay. Right? It's not that they don't understand they have done something wrong. They understand, they realize it, but what happens in child is their emotional brain is lot more active, so they react before, and then their prefrontal cortex or logical brain will take over. So slowly that rewiring and the development of brain will happen, right? So they understand those things, but we have to be very patient with them. That is one thing. Second thing, you have to be very mindful what you're doing, what you're talking, what exactly, how you are interacting with each other as a parent, how you are talking about other people in front of them, right? Because they will pick those things. Obviously, they will not understand what to do with that information, but they will make an image of what exactly you process the emotions like. Right? Some people have a very good relationship, parents अच्छे relationship है, and if their neighbor or if their maid is behaving in a rude manner or something, they treat them or they talk about them in a such particular way, they catch that. Correct. Right? So this is how we need to express our emotion, or this is how we need to show our एंगर. ये सारी चीज़ें जो वो अपने पेरेंट्स से या अपने आजू बाजू के लोगों से सीखते हैं. वंस दे आर इन स्कूल दे विल लुक फॉर टीचर, बिकॉज रोल मॉडल्स वो होते हैं, दे आर द सेफ प्लेस, दे आर द प्राइमरी केयर गिवर्स. फिर वहाँ से होता है कि उसने क्या किया, पीयर और फ्रेंड जो भी है उसने क्या किया, फिर उसके पेरेंट्स ने क्या किया, दे स्टार्ट डिस्कसिंग दो. जैसे जैसे एज बढ़ता है तो वहाँ से उनके बिहेवियर्स में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं. तो हम हर चीज़ मॉनिटर नहीं कर सकते. So what we have to look for is warning signs, or we have to look for deviations from normal, or is it the child what we are expecting? Because every parent wants to raise a successful, confident, happy child. Correct. When it deviates from that, then we have to be aware of it कि क्या हो रहा है, वो हो रहा है क्या, यहाँ से वो निकल रहा है क्या, या उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्या. And if
पॉसिबल वहाँ पे वो स्कूल काउंसलर्स की हेल्प ले सकते हैं या फिर दे कैन हेल्प टेक हेल्प ऑफ एनी अदर पर्सन दे कंफर्टेबल विद. Okay. In your experience, have you, of course, you must have come through a lot of cases, but any example you can share with us in this case to help us understand what could be those warning signals or what could be those triggers? Right. So I have seen recently this thing. So वो child, it was a girl child. So what happens is she was very cheerful, yeah, older child in the house. So when she was born and when they saw her through the childhood, she was very happy. She was very fine, doing academically very well. And suddenly, what happened is they came to me. They were going from the my clinic and they saw the board. They came that we had shown her to a psychiatrist before, but we have not seen any change, and they are not given any medications because we want her to take medication because she's not behaving in a proper way. She's not interacting. She's very fearful. She doesn't talk. She will not talk to you also. She will be very quiet. So I called them. What was the age of the girl? She was probably 14. Acha. So, but it started all the way like 9, 10 years old that time. So that time they had shown to her to a psychiatrist, and after that they had not done much of interventions after that. So what happened was when I spoke to her, she did not reply anything. Obviously, rapport was not built. It takes time for kids to build a rapport and be comfortable talking. So she did not speak or anything. So I called her brother. He was exactly opposite of her. And when he started telling about her, she started responding. So the interaction with the brother was very good. Only when she steps into the school or and only when she steps into the social world, that happens. Okay. And now they were like, give her certain medication for confidence or antidepressant or something like that. Because some others people have suggested. Okay, but what was the cause of it? We'll have to go for the cause. I'll treat the symptoms. Maybe she needs medications or not. That is a secondary. But why it happened? When we realize, when we see, when the school started or all those things, school pressures and everything started, they started getting up late. Discipline was not there. Then it was getting late for the parents, not to them. Okay. So for their parents, time was not important for them. Their school time was important. So they were working with their own space. And what happened was parents were very anxious. And with the constant anxiety, constant bombarding of you're late, you are never on time, you don't get up, you have to do things by yourself, you are a big girl now. So that bombardment made her silent. And when I showed to a therapist, she built a rapport with her, and she opened up on a game of a Jenga, all this. Okay. So it is something like that. When it comes to child play therapy and all those things, we have to work through. So, but that will change when the way you talk to your child, the child will talk to himself. So you have to be very aware and mindful about what you're talking. Now, generally, what happens is, you said that the child was shown to a psychiatrist before also, and the child did not respond to the treatment, and the parents practically had given up on that. So, why does this happen? And I think most of the cases you must have seen that parents instead of taking a second opinion, they probably try for some time, and then they ignore Give it. up. ठीक है Right. नहीं होता है छोड़ दो. That's a problem that persists. Right. And when you give up, the child will learn to give up. Right? Because they know that if I feel with the stress, if I am faced with something that is not solvable, I have to give up. So further, these problems can lead to anxiety, depression, ह्या सगळ्या गोष्टी. So what happens is priority play when we call our parents, their priorities are different. They cannot leave their job and sit for a therapy for whole day. They cannot uh, afford those things in nowadays. Both parents are working, obviously nuclear family, and obviously even if grandparents are there, their parenting techniques and everything is different. So they are not okay with the way they were parented by the parents. So they don't want their child to be in the influence of something like that. Usually happens cities, Bombay, metro cities, this happens. So what happens is the priority is just getting the day to the end, and then side by side when you have time, that secondary Sunday, Saturdays, then you look for the child, what he's doing, what she's doing, how she's performing academically, or parent child meeting. And then that time you get frustrated more that I am doing so much, I am working and I am doing everything, and still the kid is not performing, still the kid is this way, his behavior problem it is, right? Then he is being blamed. So what happens is you are not giving them time, right? So
lot of the time what happens is बच्चा घर गया, क्या सिखाया स्कूल में, राइट? अच्छा लगा नहीं लगा, अच्छा लगा नहीं लगा, सो एस नो भी बच्चा सिर्फ एस नो में आंसर देता है. सो दोज क्वेश्चंस नीड्स टू बी ओपन एंडेड. What did you like about school? What was the day like? So then their brain will start processing it. Correct. And when this ignorance and everything happens, the child will obviously think that he is not worth. So you see those few cases you must have seen. Small kids, they're going for suicide, drugs, addiction. This start very early age, and you don't have to wait for adolescence or something like that to happen. Now, parents in today's generation are determined to change the way of parenting. They generally want to reinvent the wheel. They want to become friends of their kids. But in the process, sometimes what happens is they end up forgetting to draw a line between being friends and being parents. Now, my question is, how do they maintain this balance of being parents and not being over friendly with their kids? See, when you say that they will do better parenting, it is until only the time that the kid will tell you that you were not a good parent. After that, they were like, okay, no, we were good parent. Then they start analyzing, then they start blaming, and then real conflict starts after that. Real distance start after that. You lose the connect after that, because when it becomes like you were not good parent, how can I was not good parent? I was there for your parent meeting. I was there for your first day at school. I was there for this thing. But did the kid feel that? Right. Because he will remember most of the negative things, but you have to create experiences. They will remember the experiences, they will not remember the things that they got you. And when you say that you have to be friends with your kid, it's not true. They have their friends and they don't want older friends. If your kid hangs out with some 40-year-old at on the road and you are like, okay, iska dost hai, chalega, will you be okay with it? Obviously not, no, right? Because you don't know what influence he's getting or what he's doing, right? So you don't have to be a friend of your kid. You have to be a parent. You have to be a friendly parent that you can openly talk to, Right. right? You don't hesitate. And over the period of time, they have tested you. That कितना बोलने पे कितना रिएक्शन आता है, कितना बोलना चाहिए. तो बाहर दोस्त के पास क्या बोलना चाहिए, पेरेंट्स के पास क्या बोलना चाहिए, उनके पास. सो यू हैव टू बी हैव अ लिसनिंग ईयर विदाउट रिएक्शंस. मे बी लेटर ऑन यू सिट एंड डिस्कस, इसने मुझे ये बोला, क्या करें अभी आगे. बट इन फ्रंट ऑफ हिम इफ यू डू दैट कि ये गलत है, ये सही, ऐसे मत करो, वो करो, देन दे विल गो इनटू दैट शेल. दे लाइक इधर नहीं बात करनी. Now, जब आप कहते हो कि we should not give reactions, in reality, as human beings, we react, now positively or negatively. However, generally ऐसे होता है कि when we react negatively, the child ends up losing confidence, or he starts building up anger, etc. Or there are anger issues that come up in the kid's mind. Now, parents are basically responsible, or parents can influence their kids' mentality or kids' thinking. The question here really is, how can parents influence their kids positively in such a way that this anger or losing of the confidence can be avoided? See, when you say reaction, rather than reaction, it needs to be a response. अरे ऐसा हो गया, फिर आपको क्या लगा? Right. What is your perspective of that particular situation? What is your perspective? What did you understand from it? Okay, this is the perspective that you have. This is the perspective we have. They are going to test it in the world anyway, Correct. or on the Google or AI. They don't take time much, right? So, but you have to have that conversations with them, and you have to share your own experiences. And when you share experiences, not that मेरे पैर में जूता नहीं था तब मैंने तुझे पढ़ाया था, और फिर now you have everything, now why you are not doing things. In today's world, they don't know, don't have the value of a shoe, because everyone has it. What's different in that, right? And you have not asked the child if he should come, or you are not taking the consent of the child. So you don't put your own traumas on them कि तुम्हारे लाइफ में क्या क्या हुआ था, उसकी वजह से मुझे ऐसा हुआ, तो आप ये करो. मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, आप डॉक्टर बनो, right? These kind of things pressurizes them, and then they go into withdrawal. Even if the parent is telling a good thing, they will withdraw. They will do the exact opposite, and they will see कि at least ये नहीं करना है मुझे. But in that thing, what happens is it becomes a conflict. We shouldn't judge parents also, because they are also navigating their own life and their everything. But that communication needs to be always there. और वही होता है कि आप बच्चों को आपके एक्सपीरियंस बताओ, और यू हैव टू make failures very normal so that they become resilient.
प्रॉब्लम इज नॉट दैट कि दे आर फेसिंग द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्ट, ए आई आ गया, ये आ गया, वो आ गया, पढ़ाई करना पड़ता है, कंपटीशन बढ़ गई, सब हमारे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा आपको करना है। नॉट नेसेसरी, उनका ब्रेन उसी स्पीड से बढ़ रहा है, आप उसी एज हिसाब से एज कर रहे हो। टेक्नोलॉजी बदल रही है, इसका मतलब उसका ब्रेन उस हिसाब से अडेप्ट नहीं करने वाला है, राइट? सो यू हैव टू गो बी इट एट हिज पेस एंड एक्सप्लोर व्हाट ही लाइक्स, व्हाट ही डजंट लाइक, और वो सब। सो वो सारी चीज़ें व्हेन यू सी इन द चाइल्ड, राइट, सो वो दे सी फ्रॉम द एग्जाम्पल, ओके दिस इज हाउ, एंड यू शेयर कि बॉस ने आज मुझे सुना दिया, दे लिसन टू दोस थिंग, then I went for a cigarette or I blasted on my subordinate. They are going to do the on the younger sibling, right? So you tell, no, I felt, I took a 5 minutes break, I calmed myself down, and then I went for a cup of coffee, or I spoke with my kid or spoke with my colleague, and then they will be like, okay, हाँ दोस्त से बात करो, घर का टेंशन खत्म हो जाएगा, पेरेंट्स के साथ कुछ हुआ भी है तो, so that's how they will learn. Right. Now, normally when we discuss about kids between the age group of 10 to 18, generally 16 साल की उम्र में एक पड़ाव आता है where the discussion automatically begins to navigate towards career. Now, generally this discussion between parents and children is generally a make or break point. हमारे आपके ज़माने में ये होता था कि the options of career were very limited. There used to be probably an option कि जहाँ पे आप either आप डॉक्टर बनो या आप इंजीनियर बनो. बट पेरेंट्स या जनरली पेरेंट्स ऐसे मेंशन करते थे कि स्पेसिफिक एक कोई करियर है जो मैं नहीं कर पाया था, बट मेरा ये सपना है कि तू पूरा करेगा या तू पूरा करेगी. नाउ माय क्वेश्चन ओवर हियर इज दिस एंटायर बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस can create a distance, or can create a certain kind of a rift between the parents and the kids, especially if the kids decide to take a completely different path of career. Now, do you still see this happening in today's times, even when things have changed, even when a lot of awareness of these things have happened in the minds of parents and the society in general? आज भी ये चीजें होती हैं, ये आप देखते हो? It is still there. It has changed its face, I would say. Okay. कि अभी क्या होता है कि तुझे क्या करना है कर, बट ये सारी चीज़ें देख कि इसमें तू अच्छा नहीं था, इसमें तूने अच्छा किया, ऐसा कर कि जो तुझे ऊपर लेके जाए. तो वन ऑफ द थिंग्स कि जैसे कि चपलीला खेड़ा मार, जूते को कील मार, पॉलिश कर, पर तू टॉप का होना चाहिए. सो दैट इज व्हाट यू आर डूइंग विद इमोशनल मैनिपुलेशन. यू आर इन्फ्लुएंसिंग द चाइल्ड. यू आर नॉट सेलिंग यू हैव टू बिकम इंजीनियर, you have to become a doctor, but you are pushing them towards what you have built the legacy of. Okay. And that pressure itself will put them in a situation where they don't want to be. कि अरे पेरेंट्स ने इतना किया है, मुझे इतना तो करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स इमोशनल थिंग, राइट? बट वो लेटर ऑन ही इज गोइंग टू रियलाइज इट दैट आई वॉज समहाउ मैनिपुलेटेड. Other, anyways, even if the parents were not responsible, when he sees the failure and he doesn't know how to handle, he's going to blame someone else. He'll blame the boss, he'll blame the system, he'll blame the parents, he'll blame someone. So what you have to do is, that thing is there, you have to let them do what they want, right? And more of the academically and everything, they are going to do it because they have they are not resourcefully that scanty that they don't have anything. They have resources, they will do it, but what they want to do, they will have to explain, and unless and until they like it, they will not do it now. Because before it was only survival. You had to do it even if you don't like it. Now you have built a surrounding around you, you have built a financially well thing for them, that they will not suffer, they will not go hungry. So what they will be like, okay, I'm not going hungry, let me explore. And if you don't let them do that, then it becomes a problem. Right. Then what's the point of you taking so much of efforts and then not letting them do what they want, because you did not get the freedom to it, and they will do the mistakes. What happens is, we see when they try new things, that they see the mistakes, okay, they are doing, and then we go to save that person or save that particular situation. Arey aisa ho jayega, ye ho jayega. That's where they lose the confidence. Let them do the mistakes, let them come out of it, unless and until it's too disastrous or it's too brutal. With your experience, at least you can gauge that, and at least once you are open with that thing, at least you will come to know that this is happening. And if you are too resistant to it, then you will not also come to know unless and until it has happened. You have to be aware of it. Now, nowadays, one common problem is, being observed, maybe कम या ज़्यादा मात्रा में दिखता होगा, is the problem of overparenting. Of course, parents never, will have a negative motivation in case of overparenting. They simply want to protect their kids. But examples जहाँ पे suppose back का weight है,
जैसे हमारे टाइम पे स्कूल बैग्स होते थे जहाँ पे स्कूल बैग का वजन बहुत ज़्यादा होता था. टुडे इफ द किड्स आर कैरिंग अ वेरी हैवी स्कूल बैग, then the parents certainly start feeling a lot of concern towards the kids. या जैसे situations है जहाँ पे homework दिया जाता है and kids are put to work extra hours when they come back home also. Or sometimes when in case of over parenting, when parents start putting their mistakes, the बच्चों के जो mistakes हैं उनको जो then they start putting behind their back. What do you feel would be the impact of this on the mind of the child? Over parenting का क्या impact हो सकता है? See, so there is over parenting and there is bit of parenting that happens, right? When you call it over parenting, उसका डेफिनेशन ऐसा होता है कि बच्चे का रिपोर्ट कार्ड मतलब अपना रिपोर्ट कार्ड. ही डिड नॉट गेट अ स्टार मतलब मेरे में कुछ कमी है. स्पेशली दैट लोड हैज बीन लॉट ऑन मदर्स बिकॉज द टाइम दे कंसीव द रिलेटिव्स एंड एवरीवन, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये ऐसे करो, फिर डिलीवरी के बाद इतने दिन घर पे रहो, वहाँ से वो शुरू होता है. Correct. They are been trained from the before the the what gender that kid Gender is, that kid is gonna be, yes. right? So वहाँ से वो शुरू होता है, फिर वो पेरेंट्स में अपने आप आ जाता है. And be them being very alone, not able to have support, family support system, or they not feeling that kids are safe with other people or other relatives or other people around, so they become very anxious, right? Because of that it happens कि कितना करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ओवर प्रोटेक्ट कितना करना है, क्या. सो दैट देर इज़ अ वेरी थिन लाइन इन बिटवीन कि ओवर पेरेंटिंग क्या है, पेरेंटिंग क्या है, ठीक है. और राइट रॉन्ग पेरेंटिंग नहीं होती. पेरेंटिंग है, ओवर पेरेंटिंग है. बच्चा कितना उसमें खुश है, कितना ही इज़ फ्लरिशिंग, हाउ मच ही इज़ एन्जॉइंग हिज लाइफ, हाउ मच इज़ एन्जॉइंग हिज होमवर्क एज वेल, दैट वी हैव टू सी. इट डजेंट हैव टू बी अ स्ट्रेस. घर पे होमवर्क दिया, अगर पेरेंट्स स्ट्रेस्ड है कि अरे उसको लेके बैठना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली उसको ही इज़ नॉट गोइंग टू लाइक इट. Because if you give a homework, it will take time, and that homework will not be right. He will need help over the period of time. When he grows 10, 10, 12, 14 साल का हो जाएगा, he'll do by himself, and then he'll take help from here and there. But when you go give homeworks at home or something, then they are like school क्यों भेजते हैं, right? So it is going to always be that what is required, what is how much needs to be done, and we have to be very rational when you do that. होमवर्क देना है, उससे उसको क्या मिलने वाला है. डू यू वॉन्ट हिम टू स्टे बिजी एट होम, डू यू वॉन्ट हिम टू लर्न समथिंग, डू यू वॉन्ट टू एन्जॉय, लेट हिम एन्जॉय वॉट ही इज डूइंग एट होम. अदरवाइज टू स्टे फॉर देम बिजी, दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स, स्पोर्ट्स है, टीवी है, बाकी गैजेट्स है, सब कुछ है. सो वाई वी आर गिविंग, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. वाई द स्कूल हैज़ गिवन, वो पेरेंट्स हैज़ टू अंडरस्टैंड एंड देन वर्क अकॉर्डिंगली, रादर देन जस्ट ब्लेमिंग ईच अदर कि अरे ये स्कूल में ये होता है, वो स्कूल में वो होता है, तो यहाँ पे इतना नहीं देते, यहाँ पे इतना दे दिया है. और हाउ मच इज ऑफ दैट पर्टिकुलर एज रिक्वायर्ड, कितना वो बच्चा खुद से कर पाएगा उसमें से. अदरवाइज व्हाट हैपेंस टू जस्ट टू फिनिश इट ऑफ, पेरेंट्स विल जस्ट डू इट एंड सेंड इट, लेट द किड स्लीप एंड आई विल डू द होमवर्क एंड आई सेंड इट. लॉट ऑफ द टाइम दैट आल्सो हैपेंस. देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ द होमवर्क्स, वो भी होता है. Now, इसमें एक और चीज़ है. When we say that the kids are too busy, the children nowadays have a very hectic schedule. Generally, अगर आप देखोगे तो स्कूल टाइमिंग शुरू होते हैं 8 बजे एंड देन द स्कूल गेट्स ओवर एट 2 o'clock. 2 बजे बच्चा जो है फ्री होता है. 2:30 टू से सपोज 5 o'clock वो बच्चा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बिजी है. आफ्टर 5 o'clock बच्चा घर पे आता है, 5:30-6 बजे फिर पढ़ाई के लिए बैठ जाता है, फिर 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाई करता है. एंड देन ही और शी वॉचेज अ बिट ऑफ टीवी हियर एंड देयर, खाना खा के सो जाता है, एंड देन द सेम रूटीन बिगिंस टू रिपीट. सो ये जनरली है द सिचुएशन टुडे व्हेन वी टॉक अबाउट मेकिंग अ शेड्यूल और कीपिंग द किड्स बिजी. Right. So most of the time what happens is the parents are busy, so they want the kid to be busy. Right. For some parents it's like, for mothers, they make it a project, right? Because they have left their job, they have sacrificed their career, they have sacrificed a lot of things for the kid, and then they want their kid to be good. But is it required for the kid? How much the kid wants, how much the kid enjoys it. So school, he'll not like all the things, but why he's doing sports is for something else. He's going to learn life skills from the sports. टीम बिल्डिंग हो गया, रेजिलियंस हो गया, फेलियर्स को मैनेज करना हो गया, ये सारी चीज़ें वो स्पोर्ट्स से सीखने वाला है. ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आई हैंड कोऑर्डिनेशन वाले जो गेम्स है उसके लिए कर रहे हैं. सो व्हाई वी आर डूइंग इट, दैट इज इंपॉर्टेंट. वी डोंट वांट देम टू बी बिजी, वी वांट टू ड्रेन देयर लॉट ऑफ एनर्जी दैट दे हैव एंड वी कैन नॉट मैच इट विद. सो दैट्स द रीजन वी पुट देम देयर. So we are buying our freedom with them, putting them to that particular sports or something. We have to look into that, or the kid is liking it.
सब तो बनने नहीं वाले हैं कि रोनाल्डो नहीं बनने वाले सब, they are not going to be तेंदुलकर और धोनी और समथिंग लाइक दैट, राइट? बट हाउ मच एंड वाई दे आर डूइंग इट, उसके लिए उसको ये करना चाहिए. वी हैव टू कीप आस्किंग अगेन एंड अगेन टू द किड, do you want to be in the same sport, do you want to change the sport, what is that you like about the sport? So when you ask this open-ended question in the sports level, वहाँ पे क्या हो रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है, then they will explore more, they will think about it. Otherwise they will also follow कि हाँ घोड़े के जैसा सीधा लाइन में चलो, वहाँ से वहाँ, then संडे को है, then they will go for a lot of pleasure. फिर PS5 खोल के ही बैठना है पूरा दिन, because I was very productive throughout the week. Not necessary. Now, a lot of discussion happens around topics such as confidence building and personality development. Now, trauma or any accidents, they seem to have a negative impact on the mind of the child, eventually on the confidence of the child, and on their personality, on their self-esteem. I'm sure you also must have, seen many cases जहाँ पे trauma has affected the child heavily. How does the child deal with this, and how can parents support the kid in this process? राइट. सो व्हेन यू से ट्रॉमास, चाइल्ड के लिए ट्रॉमा मतलब अर्थक्वेक, वॉर, ये सारी चीज़ें नहीं होती. इट कैन बी बिट ऑफ बुलिंग ऑल्सो, इट कैन बी अ स्लैप फ्रॉम फादर और समवन एल्स और एनी थिंग दैट हैज हैपेंड, ही फेल्ड इन एग्जाम समथिंग. सो दो स्मॉल थिंग्स कैन बी अ ट्रॉमा फॉर हिम. सो व्हाट हैपेंस इज, ये सारे प्रोसेस में व्हाट वी फॉरगेट इज, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, सेल्फ स्टीम बिल्ड करना है, तो वी यूजुअली गो फॉर द रिजल्ट. A+ मिला क्या, B+ मिला है, कितना ग्रेड मिला है, कितने पॉइंटर्स आए हैं. इन दैट होल प्रोसेस दे फॉरगेट टू एंजॉय द प्रोसेस. कि प्रोसेस जो है उसको पढ़ाई करने के लिए क्या करना चाहिए, वो प्रोसेस एंजॉय करना वो भूल जाते हैं. वाई दे फॉरगेट इज बिकॉज यू डोंट अप्रिशिएट द प्रोसेस, यू डोंट अप्रिशिएट द एफर्ट्स दैट दे हैव पुट इन. सो ऑब्वियसली पूरे रेस में एक ही तो फर्स्ट आएगा, सारे फर्स्ट नहीं आएंगे. और फिर सेकंड आने वाले को तुम बोलोगे अरे थोड़ा तो और कर लेता तो फर्स्ट तू भी आ जाता. So even he's second, he'll feel like he's a last person, a failure. And the third person होगा तो अरे कितना efforts लिया तू, 2 ही मिनट के दूर था. So when he'll put more efforts, right? So the way you talk about the efforts that they have put, and rather than talking about the achievements they are done in their lives or something like that, वो automatically build हो जाता है. और फिर later on life में वो problem आना बंद हो जाता है. और जब वो वी थिंक कि वो वहाँ पे उस ट्रॉमा की वजह से है या फिर वहाँ पे कुछ है, तो यू ट्राई एंड रिजॉल्व, यू ट्राई एंड गिव क्लोजर टू दैट पर्टिकुलर थिंग, हाउ मच दैट मैटर्स, हाउ मच इट हैज़ इम्पैक्ट यू, एंड हाउ यू कैन चेंज अबाउट इट. Either you talk with the kid, he will tell you, you will understand, the conversation will happen. And if you don't understand, you take help, psychologist के पास जाओ, psychiatrist के पास जाओ कि ये हो रहा है, is this because of that trauma? Because lot of the time what happens is trauma वो टाइम का होता है, but it triggers the old memory. So, आप वो रिजॉल्व कर देते हो तो वो पुराने ओल्ड वाला ट्रॉमा भी वहाँ पे सबसाइड हो जाता है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रॉमास, वो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है सारा. बट इट इज़ बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, और इज इट बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन, इज इट बिकॉज ऑफ सम न्यूरोकेमिकल्स दैट आर गॉन रॉन्ग, जिससे पुरानी मेमोरीज और ये सारी चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कर रही है, रोलर कोस्टर हो रहा है. सो दैट वी हैव टू लुक इनटू इट. Now, why I asked you this question is because the kid, suppose, has faced some major accident, say maybe an injury causing a trauma, say at the age of, say, 5. Now, between the age of 5 to 15, he or she did not show any signs of, any signs or any specific signals of diminishing confidence or, any changes in the personality. But like I mentioned earlier, जो हमारा पहला सवाल था कि जहाँ पे at the age of 16, parents suddenly, start seeing a rebellious nature in the child, or, they start seeing anger issues in the child. This probably could be an impact of the trauma he or she has faced in the childhood. What would be your suggestions for parents to deal with kids in such a situation? सो दैट्स व्हाट आई सेड कि जो बचपन में ट्रॉमा हुआ है, इट्स नॉट लाइक कि उसको हम रिजॉल्व ही नहीं कर सकते या उसका इम्पैक्ट नहीं कम कर सकते. वी डोंट वांट टू डिलीट द मेमोरी ऑफ इट. वी वांट टू चेंज द रिस्पॉन्स और इमोशनल रिस्पॉन्स ही गेट्स फ्रॉम इट. एक फोबिया बैठा है तो फोबिया निकालना है, राइट? या फिर किसी चीज़ के लिए पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया था, नाउ ही रिमेंबर्स दैट पर्टिकुलर थिंग और ही इज़ यूजिंग दैट पर्टिकुलर मेमोरी टू गेट व्हाट ही वांट्स. ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर करने पड़ते हैं. और पेरेंट्स को जब ये समझ में नहीं आता कि ही इज़ बीइंग रिबेलियस, वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, दैट्स द टाइम दे नीड टू टेक अ हेल्प. कि आप बैठ के वो डिस्कशन करोगे और उसको कॉम्प्लिकेट करोगे और आपका रिलेशन ख़राब करोगे, तो अल्टीमेटली वो नहीं जाएगा, बिकॉज ही इज स्पीकिंग सम अदर लैंग्वेज, यू आर स्पीकिंग सम अदर लैंग्वेज. यू विल बी लाइक अरे गिर गया था, इतना क्या बड़ा बात है, हाथ पैर अभी भी ठीक है आपके, बट फॉर हिम इट वॉज अ बिग थिंग, बिकॉज
Maybe that time the father did not pick him up. Maybe other people were laughing at him. Maybe something else, and we don't remember exact the situation and scenarios और क्या हुआ था. बहुत सारे traumas ऐसे होती हैं कि हमको याद भी नहीं रहते, पर उसका reactions आते रहते हैं. So what we have to do is we have to identify those patterns कि ये pattern repeat हो रहा है क्या. And if that patterns are causing harm to you, you have to change those patterns. And if you are able to identify by yourself, well and good. Nahi, you take help. Okay. Okay. Now, coming to the next part, once the parents have dealt with the kid, the obvious next part would be to help them build up the confidence and their self-esteem. How should parents work on this, or say what could be a step-by-step kind of a guideline for them? Right. So, like I said, you have to be very specific when you appreciate कि ये तूने अच्छा किया. In general, तो smart है. Right. ये जब होता है कि तू smart है, then he considers he is smart in every aspect of his life. ये aspect में भी मैं smart नहीं हूँ. He tests reality. तो parents मेरे से झूठ बोल रहे हैं, मेरे को ये नहीं आ रहा है, या फिर मैं स्मार्ट हूँ, मुझे ये नहीं आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप कम होता है. सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. यू आर गुड एट राइटिंग, योर हैंड राइटिंग इज गुड, यू हैव वेरी गुड वे ऑफ टॉकिंग टू पीपल, तो सबसे अच्छे गुल मिल जाता है. दैट इज़ नॉट द थिंग. वॉट एग्जैक्टली दैट यू आर डूइंग, स्पेसिफिकली क्या आपको अच्छा लगा उसके बारे में. तो ये व्हेन यू बी मोर स्पेसिफिक, दे बिकम मोर स्पेसिफिक कि हाँ ये चीज़ मेरी अच्छी है, ये चीज़ मेरी खराब है, आई हैव टू नीड टू इम्प्रूव ऑन दिस. सो क्रिटिसिज्म भी स्पेसिफिक होना चाहिए. Okay. आप बुद्धू हो, आपको ये भी नहीं आता, जनरलाइज करने जाओगे तो इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक. तो वो सेल्फ स्टीम बिल्ड नहीं होगा, वो आइडेंटिटी क्वेश्चन करते रहेंगे एंड देन देल वहाँ पे सेफ्टी, वहाँ पे वो केयर, वहाँ पे वो लव नहीं मिल रहा है, तो देल सीक आउटसाइड. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको 2 मिनट रोकता हूँ. When we say appreciate करना चाहिए, there could be times when the parents appreciate way too much, or they absolutely do not see the minuses in the kids. Like in case जैसे हमने फ्रेंडली होने के बारे में बात की थी, या मे बी ओवर फ्रेंडली, ओवर पेरेंटिंग के केस में हमने बात की थी. सो ये जो बाउंड्री लाइन है, या ये जो बाउंड्री है, हाउ डू दे ड्रॉ दिस पर्टिकुलर बाउंड्री सो दैट द अप्रिसिएशन टुवर्ड्स देयर किड्स डजंट गो ओवरबोर्ड टुवर्ड्स स्पॉइलिंग देम. So that's what authoritative parenting and authoritarian parenting. Okay. तो अथॉरिटेरियन में ऐसा ही होना चाहिए. अथॉरिटेटिव में क्या है कि हाँ ठीक है, ये सारी चीज़ें, वी केयर, वी लव यू है, ऑल दिस थिंग, बट दीज आर द बाउंड्रीज. राइट. राइट. दूसरा आता है कि सब कर लो, ना मना नहीं, इसको ना बोल दिया तो हमारा दिन खराब है, तो सब ला के दो, सब ला के दो. व्हेन ही टर्न्स 14, ही टर्न्स 15, 16, ही हैज़ मोर पावर. देन द टैंट्रम्स, द एग्रेशन, द ब्रेकिंग ऑफ टीवीज और समथिंग, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है. तो जब आप कुछ बुरा कर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. दिस इज समथिंग वी डिड नॉट लाइक, दिस इज व्हाट आवर बाउंड्रीज आर, दिस इज व्हाट वी शुडंट क्रॉस. और देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट, not physical consequences, punishment or something, but maybe it can be withdrawal of your privileges that you have. So ये थोड़ा थोड़ा करके you have to test the waters. ऐसा उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है कि 1 किलो इतना ही ले लो या फिर ऐसे ले लो. You have to test, they will also test you, you will also have to test. तो वो थोड़ा सा बार्गेनिंग करना और वो सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं. अब पेरेंटिंग की जब हमने बात की थी, तो वी हैड सेड दैट there's parents who want to reinvent the wheel of parenting, but frankly ऐसी कोई यार्डस्टिक या ऐसा कोई बेंचमार्क तो नहीं है. Right. So once you reach a particular age, it's your own responsibility, no matter what background you come from, no matter what kind of parents you had, no matter what country you were in. Right? Yes, फिर you have to take a as an adult, you have to take your own responsibility. ये मेरा life है, मेरा ऐसा situation था, what I want. आपका एक बार गोल क्लियर होता है तो दिस ऑल थिंग्स गो सेकेंडरी. बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा उस ट्रॉमा से आप हील नहीं हो रहा है, यू डोंट नो हाउ टू, यू टेक हेल्प एंड गो मूव आउट. बट वो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आ जाती है. फॉर सम कंट्रीज 16 दे किक द किड्स आउट, कि ले लो आप. वेस्टर्न कंट्रीज में तो होता है. वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, इंडियन कंट्रीज में 18 का हो गया, लाइसेंस मिल जाता है, पर 40 तक घर पे ही है, ऐसा भी हो जाता है. एंड देन 40 तक घर के इन द सेंस क्या हो जाता है, जॉइंट फैमिली अलग चीज़ होती है, फिर आप डिपेंडेंट हो वो अलग चीज़ होती है. वो फैक्टर सारे आने चालू हो जाते हैं. सो यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. वंस यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी देन यू हैव अ हेल्दी फैमिली. तो पहले जो जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था वो इसलिए निकलते आ रहा है कि आपका इंडिपेंडेंस छीन रहा था, यू आर बीइंग टू इंडिपेंडेंट. बट नाउ कि उसके भी कुछ प्रोज कॉन्स है, वो सारी चीज़ें चलती रहेगी. नेवर एंडिंग डिबेट है वो. Now, in your experience, could you share some signs of low self-esteem for parents so that वो इन signs को जल्दी identify करे at an early age and they can take some corrective actions on this? लो सेल्फ एस्टीम का बेसिक ये चीज़ होती है कि आप फंक्शनल कितने हो.
फंक्शनल व्हेन आई से फंक्शनल, आप आपके पीयर्स के साथ कितना इंटरेक्ट कर रहे हो, हाउ मच इंटरेक्शन यू आर हैविंग. पहले अच्छा था, अभी बिगड़ गया है. पहले उसका दोस्त था, अभी उनका जम रहा ही नहीं है, खुद अकेले अकेले रह रहा है, या फिर अपने अपने में ही रह रहा है, घर से भी बात नहीं कर रहा. स्कूल में भी वैसे ही है, वैसे ही फीडबैक आ रहे हैं. परफॉर्मेंस वाइज, एकेडमिक वाइज ही इज गोइंग टू लो. तो ये सारी चीज़ें क्या है कि दैट ही इज हैविंग सम इश्यूज, ही इज हैविंग सम इश्यूज हैंडलिंग हिज इमोशंस. बिकॉज लाइक यू सेड 10-14 की एज में योर ब्रेन स्टार्ट्स रीवायरिंग इट सेल्फ, लॉट ऑफ चेंजेस हैपन. और इमोशनल ब्रेन को इतना रेगुलेशन नहीं होता है, तो उसके ऊपर इतने ब्रेक्स नहीं होते. तो इट्स लाइक यू आर ड्राइविंग अ मर्सिडीज विदाउट अ ब्रेक, और पुअर ब्रेक, साइकिल का ब्रेक ऐसे. तो वो सारी चीज़ों में क्या हो जाता है कि व्हेन यू सी दैट इरिटेबिलिटी, डिफायंस बिहेवियर कि सुन रहा है नहीं है, उल्टा ही कर रहा है, सारी चीज़ें जो पहले अच्छी थी एकदम से चेंज हो रही है, धीरे धीरे चेंज होते हुए दिखी. सो दैट इज़ अ वन साइन दैट ही इज स्ट्रगलिंग, be it because of self esteem, be it because of other aspect of his life. But तो वहाँ पे we have to probe more, look into more, be more observant, be more present when we are interacting. Okay, so what kind of questions can parent ask? I mean, I'm sure there is no such FAQs. या FAQs नहीं होंगे, but sample questions क्या हो सकते हैं, so that to initiate this conversation, to steer the conversation with their kids, to understand the concern at an early age. Simple ways जो situations होते हैं उसमें उनको पूछो कि what they are feeling, let them name their feelings. See, or if they see a behavior, ask them why this happened when they are calm or something. Why did you behave in this way? What was the emotion behind it? What was their thought behind it? तो इतना भी पूछेंगे तो you'll understand more what was happening. And you just let them know कि what if this you could have done in particular this way. तो फिर उसको थोड़ा सा वो हिंट मिल जाता है कि हाँ, this is what next time if this time happens I'll be more open to it. Are you feeling very hopeless, helpless, something those kind. Directly ask these questions. कि आप एक give up करने जैसा feel कर रहे हो क्या? Rather than using big terms, you just feel, do you feel like giving up on the exams? Directly ask. Correct. Right? Okay, you feel like giving up. Why? Because he thinks that he is not good enough, but he has scored 99%. How can he not score good in other aspect of his life? But this part might be difficult for him. And is it because of his intelligence? Is it because of the academics, or is it because of the syllabus, or is it because of his own thought that he will not be able to do, or he is not able to handle that stress? So वो बिहेवियर में, उनके एपेटाइट में, उनके एक्टिविटी में, उनके स्लीप पैटर्न्स में, उनके खाने पीने के जो पैटर्न्स होते हैं, जंक खाना, ये सारी चीज़ें उससे पता चलता है. हाउ मच दे आर यूजिंग देयर फोन्स, डिवाइसेस, उस पे. I'm anyways coming to that question. सो वो सारी चीज़ें यू हैव टू बी ऑब्जर्वेंट कि क्या हो रहा है वहाँ पे. दे विल गेट एन हिंट, दे विल गेट द वार्निंग साइन कि हाँ ये. और ओनली वे टू नो इज आस्क. डायरेक्टली जो लग रहा है वो पूछो. मे बी ही विल नॉट लाइक इट, मे बी यू डोंट नो हाउ टू आस्क, बट यू विल लर्न इवेंचुअली कि हाँ ये पूछने पे आंसर मिल रहा है. यहाँ पे ही कैन टॉक टू अस, अदर रादर देन गिविंग सोल्यूशन, जस्ट लिसन टू हिम. नहीं तो पेरेंट्स क्या हो जाता है, सोल्यूशन मोड में चले जाते हैं. So आपने फोन की बात की, तो आई वांट टू कम टू अ क्वेश्चन ऑफ स्क्रीन टाइम. Now after COVID, we were made aware of this concept of screen time. Now during COVID, I can understand because the kids had to be in front of the screen. Specifically उस टाइम पे ये लोग जो है अपने classes attend करते थे, lectures attend करते थे. But आज after so many years that COVID has ultimately gone away, but today screen time has taken a very ugly turn, especially towards the negative effects on social media. So how does screen time really affect the mental health of kids? बहुत इफेक्ट पड़ता है स्क्रीन टाइम का, राइट. बट नॉट बिकॉज कि आप उसके ऊपर पढ़ाई कर रहे हो या ये इंस्टाग्राम देख रहे हो. आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर वो स्क्रीन टाइम का इफेक्ट डिपेंड कर रहा है, राइट. दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि हाउ मच योर ब्रेन कैन टेक द स्क्रीन टाइम. अगर आप पढ़ाई का देख रहे हो, आप बाकी की चीज़ें देख रहे हो, आप सोने के पहले अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली लाइट इमिटिंग, ब्लू लाइट, ये वो सब उसका आपका हेल्थ पे डिफेक्ट, लाइफ स्टाइल पे उसका इफेक्ट आने वाला है, right? But if you're utilizing it for AI, learning something or something like that, you're going to spend time on the screen, right? आपको सिर्फ ये नहीं है कि आप बच्चा कितनी देर स्क्रीन पे है, आपको ये देखना है कि वो कर क्या रहा है स्क्रीन पे, कहाँ जा रहा है, क्या क्या कर रहा है. पेरेंटल कंट्रोल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें उसका नेविगेट करो. यू विल अंडरस्टैंड हिज थॉट प्रोसेस. अगर इफ़ ही इज़ ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ही हैज़ मेड अ फेक अकाउंट, और एज इधर उधर वो सारी चीज़ें करके ही हैज़ बीन देयर, तो ऑब्वियसली फोमो क्रिएट होना, फियर ऑफ मिसिंग आउट तो है ही, कंपैरिजन हो जाना, एंड देन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि अरे मैंने तो फॉर पीपल हु आर वेरी स्टूडियस, आई डोंट एन्जॉय, माई फ्रेंड्स एन्जॉय, स्टिल ही गेट्स मार्क्स, आई हैव सैक्रिफाइस्ड सो मच, ही डजंट हैव टू पुट एफर्ट्स, व्हाई शुड आई स्टडी, आई विल ऑल्सो डू द सेम थिंग्स.
but he doesn't see that he has put a only 30-second reel. Other time he is being productive. तो वो जो पैटर्न आ जाता है, तो उस चीज़ को हमको देखना है कि आप क्या कर रहे हो. तो स्क्रीन टाइम कैन बी हेल्दी, बट हाउ मच योर ब्रेन कैन टेक फॉर लाइक 3 years old, 4 years old, इट कैन बी 1 hour. जैसे जैसे एज बढ़ता है इट कैन बी 2 hours, 3 hours, बट इन डिवाइडेड टाइम्स. ठीक है, वो रिसर्च बता रहा है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप कर क्या रहे हो उसके ऊपर. Now, when we were kids, we had an outlet. दोस्त होते थे, so we used to play with them, we used to talk to them. मेरे previous episode में when I was discussing on content creation and social media algorithms, एक और problem सामने आया था which was doom scrolling. Now, the solution that we spoke about in that episode was that we can find someone to talk to. But problem ये है कि सामने जो आदमी है, he's also on the screen. Now, how does someone cut down on this and overcome this problem of doom scrolling? Because this actually is somewhere killing our productivity. उसमें क्या है कि सी एनी एडिक्शन और एनी बिहेवियर दैट यू वांट टू चेंज, यू हैव टू हेल्प लाइक रिप्लेस इट विद अ हेल्दी वन, राइट. नॉट नेसेसरली आप लोगों से जाके बात करो. ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दैट यू स्नैप आउट ऑफ इट रादर देन कि थोड़ा थोड़ा करके कम करूँगा, आज 1 घंटा ही किया, कल आधा घंटा करूँगा, तो इट बिकम्स लाइक सिगरेट छोड़ना है, दारू छोड़ना है, वो दैट काइंड ऑफ थिंग. बट रादर देन जस्ट स्नैप आउट ऑफ इट कि इतना ही टाइम मुझे स्पेंड करना है, इतना ही करना है, यू गेट आउट ऑफ इट. उसके बाद अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू करो. आप जिम जाओ, आप बाकी की चीज़ें करो. अल्टरनेटिव कुछ भी हो सकता है. वॉट एवर इज़ गिविंग यू दैट प्लेजर, वॉट एवर इज़ गिविंग यू दैट डिस्ट्रैक्शन, वो अल्टरनेटिव्स आप ले लोगे तो ऑटोमेटिकली ये डूम स्क्रोलिंग चला जाएगा. बिकॉज अल्टीमेटली डूम स्क्रोलिंग से क्या कर रहा है, आपको डोपामिन स्पाइक्स मिल रहे हैं, राइट. सो दैट उससे क्या हो जाए, प्लेजर नहीं मिल रहा है, बट वो स्पाइक्स आके जा रहे हैं और वो डिप्लीट कर रहे हो और आपको. तो उससे अच्छा आप क्या करो, हेल्दी वेज में हेल्दी हार्मोन सीक्रेट करो, गो फॉर अ रन, राइट. सो उतने टाइम के लिए आपको कंट्रोल करना है, राइट. तो जब वो दोस्त दूसरा भी होता है तो देन यू डिसाइड कि अरे तेरे को भी छोड़ना है, मुझे भी छोड़ना है, चलो बात करते हैं. समथिंग लाइक दैट वी हैव टू फाइंड. So previous episode जो था वो it was about content creators. Now we see a lot of content creators on Instagram, on Facebook, on social media. No comments on whether the content is good or bad, but the sheer number of followers, the likes, the shares is providing that dopamine surge in their mind, motivating them to create random content day in and day out. From a mental health point of view, how important is it to break this particular virtual image that the creators have created on their social media page? See, we don't have to break that particular image. It will automatically break once they come to a real world. राइट. जब आपको कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आप लाइक्स, आपकी आइडेंटिटी उस चीज़ से लिंक्ड है और सडनली वो कोई छीन लेता है या सडनली वहाँ से वो विड्रॉ हो जाता है, नहीं मिलता है, तो फिर वो क्राइसिस आपको हैंडल करना पड़ता है. और वो किसी ना किसी दिन होता है. आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, रैंडम चीज़ें कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो. लॉट ऑफ पीपल आर अवेयर दैट दे आर डूइंग रैंडम थिंग्स बिकॉज दे नो दैट दे आर गोइंग टू गेट मनी आउट ऑफ इट और दे आर गोइंग टू गेट लाइक्स आउट ऑफ इट. सम पीपल आर डूइंग फॉर लाइक्स, सम पीपल आर डूइंग फॉर मनी, वट एवर रीजन. पर उनको पता है, बट दिस इज़ नॉट लॉन्ग स्टैंडिंग कि वो उससे ही उनकी लाइफ चलेगी, राइट. वो बबल कभी ना कभी ब्रेक होता ही है. उनका कोई दोस्त कर लेता है, गवर्नमेंट कर देती है, फिर कोई और करेगा, वो ऑटोमेटिकली होने ही वाला है. बट यू जस्ट हैव टू बी प्रिपेयर्ड. और वी कैन नॉट कंट्रोल दोज थिंग्स ऑल्सो कि कितना कंटेंट डालना चाहिए, कौन डालना चाहिए, क्या डालना चाहिए. सम वन ऑफ द कंट्रीज हैज डन दैट कि 16 तक नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक और समथिंग लाइक दैट. सो इवेंचुअली दैट इज गोइंग टू हैपन. गवर्नमेंट रेगुलेशन या ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाएगी वंस द गुड अबाउट सोशल मीडिया सरपास इज बैड. तो उसको बाद वो होता है, एक बार बैड सरपास करना शुरू हो जाएगा तो वो अपने आप ही कम हो जाएगा. यू विल हैव टू हैव मोर रेगुलेशंस और यू विल बी मोर स्पेसिफिक व्हाट यू वांट, व्हाट यू लाइक. वो हो जाता है बात धीरे धीरे, बट इट विल टेक टाइम. So now coming to the most important part, the word called depression, the D word. Although awareness about this particular word is growing in the society, still a lot of parents yet mistake this to be mood swings. Maybe they do not want to accept it or understand it कि मेरा बच्चा कैसे डिप्रेस हो सकता है, या हम कभी डिप्रेस नहीं हुए थे, सो ये कैसे हो गया. So according to you, what could be those red flags that parents should look out for in their children, so as to understand कि ये डिप्रेशन है या ये मूड स्विंग्स है. सी फर्स्ट थिंग कि वर्ड कितना कॉमनली यूज़ होता है. वो पेरेंट्स भी बोलते हैं आज मैं डिप्रेस्ड हूँ, अच्छा आज खाना नहीं अच्छा बना, आई फेल डिप्रेस्ड, आज दिन अच्छा नहीं गया, आई फेल डिप्रेस्ड. तो डिप्रेशन का यूज़ हमको थोड़ा सा माइंडफुली करना पड़ेगा कि यार कहाँ यूज़ करना है, क्योंकि जो एक्चुअल डिप्रेशन से जा रहा है उसके लिए इट इज़ प्रॉब्लमेटिक. कि उसको लगता है अरे ये कल डिप्रेशन में था, आज ठीक हो गया, मैं कैसे नहीं हो रहा. सो
वो डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स होते हैं, राइट? फॉर अडल्ट इज डिफरेंट। यंग एज में क्या हो जाता है, वो चिड़चिड़ापन होता है, इरिटेबिलिटी, खाना नहीं खाना, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स, राइट? चीज़ें फेंकना, या फिर खुद का ध्यान नहीं रखना, नींद हो गया, या फिर खुद का साफ सफाई करना, या फिर नहाना। तो बेसिक चीज़ जो होती है वो करना बंद कर देते हो, ठीक है? तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कितने पीरियड तक है? इफ़ इट्स मोर देन 2 वीक्स यू हैव टू हैव रेड फ्लैग्स कि हाँ 2 वीक से कंसिस्टेंटली इसका ये मूड है, और उसके साथ बाकी के सिम्टम्स भी दिख रहे हैं उसके। लो मूड है, उसको पहले जो एंजॉय करता था वो नहीं कर रहा, उसका पसंदीदा खाना बनाया फिर भी नहीं कर खा रहा है, टीवी उसका अच्छा लगा है, उसको टीवी अलाउ किया, गेम करने के लिए अलाउ, उसका मज़ा नहीं आ रहा है। सो दिस थिंग्स आर लाइक समथिंग साइंस कि पहले जो अच्छा लगता था वो नहीं लग रहा है। सो दिस कैन बी डिप्रेशन। और देर एक वार्निंग साइन दिखी, आप चेक करके आओ, कोई आपको ऐसा लेबल नहीं करने वाला है कि आपके बेटे को डिप्रेशन है, आप क्या कर रहे थे। सो यू जस्ट गेट चेक्ड, दैट इज़ द बेस्ट वे, रादर दैन कि हाँ ठीक है एक हफ्ता हो गया वापस नॉर्मल हो रहा है, फिर समझ रहे हो कंसिस्टेंटली वो चीज़ें हो रही है, देन वी हैव टू बी लुक इनटू इट कि हाँ 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, वैसे ही 1 महीना हो गया, परफॉर्मेंस कम है, दोस्तों के साथ ये हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें। See, आज भी there is a stigma, especially when someone decides to take professional help. आज भी सोसाइटी कहीं ना कहीं कहती है बात की ये पागल हो चुका है. The entire point of discussion is to break this particular stigma and to advise people on the way ahead. So आपका इसमें view क्या है? What would be your advice to deal with these issues? कोविड हुआ, सब बताते थे कि अरे मेरे को कोविड हुआ, मैं यहाँ पे एडमिट हुआ। जब डिप्रेशन होता है कोई नहीं बताता, या कोई थेरेपिस्ट के पास जाता है तो कोई नहीं बताता। सिलेक्टिवली बताना, लाइक ब्रेकअप हो गया, गर्लफ्रेंड को बता दिया कि मैं थेरेपी के लिए जा रहा हूँ तेरी वजह से, वो दैट इज़ डिफरेंट। बट मोर टॉकिंग अबाउट इट, लेटिंग पीपल नो दैट इट इज़ नॉर्मल, कि जो ऑलरेडी जो सेलिब्रिटीज लोग करते हैं कि दे टेल कि हाँ मुझे भी डिप्रेशन हो रहा था, आई वॉज एट द टॉप ऑफ माई दिस थिंग, आई वॉज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, आई वेंट फॉर हेल्प। तो उसकी वजह से थोड़ा सा एक्सेप्टेंस आ रहा है। तो ओनली वे टू डील विद दिस इज टॉक मोर अबाउट इट। और ठीक है, और दूसरा कोई जा रहा है तो उसको जज मत करो, ठीक है? कोई दवाई खा रहा है तो अरे तू पागल ही हो गया, अरे तेरे को उसका आदत ही लगेगा, तू छूटेगा ही नहीं, तू लाइफ लॉन्ग ऐसे ही रहेगा। ये जब हम बातें करना शुरू करते हैं तो दम उसको भी वो स्टिग्मा और वो सारी चीज़ें बढ़ाती रहती है। और उसका जो नॉलेज है या फिर उसके बारे में जो जानकारी है, तो रिलेवेंट जगह से लेना शुरू करोगे तो होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ये है साइंस है या उसको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, बट रिलेवेंस कहाँ से आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पेशेंट से सुनो कि दवाई खाने के बाद कितना अच्छा लग रहा था उसको या क्या फ़र्क पड़ा, रिलेटिव बोलेगा अरे सोता ही रहता है, तो उसकी वजह से उनका परसेप्शन अलग रहता है। बेचारा वो स्ट्रगल कर रहा था और उसको नींद आ गई, इट वॉज गुड फॉर हिम। सो वो सारी चीज़ें जो स्टिग्मा है उसके बारे में जितना बात करोगे, जितना ओपनली आप बताओगे कि हाँ मुझे भी था या फिर उसने किया, उसने लिया था, तो जितना आप उसको नॉर्मलाइज करोगे बात करके, उतना ही वो स्टिग्मा कम होगा। Actually, COVID में initial phases में ये था कि people were not accepting patients, maybe because of the fear or lack of awareness. But I'm sure everyone will agree कि जैसे जैसे awareness बढ़ते गया, and when the patients were coming back home after recovering, लोग उनके ऊपर फूल भी बरसा रहे थे, and that was happening. That kind of awareness was increasing. उसका राइट, बट डिस्कस करने के बाद वो उससे बाहर आया तो उसको सेलिब्रेट करने से अच्छा उसको सपोर्ट दो, उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ ये नॉर्मली हमारे जैसा ही है, रादर देन उसको कोई बड़ा ट्रीट करो या फिर उसको छोटा ट्रीट करो। जब हम अपने आप दोस्त की तरह उसको जैसे पहले जैसे ट्रीट करते थे वैसे ही अगर उसको ट्रीट करना शुरू करें तो उसके दिल में से भी वो चीज़ निकल जाती है कि अरे हाँ मुझे कुछ अलग हुआ था। तो वो जब आप नॉर्मली सबको ट्रीट करना शुरू करोगे, जब पहले करते थे वही करो, तो वो करने से उसको पता चलेगा। एक बार 2 बार वो भी डाउट में रहेगा, अरे क्यों ऐसे कर रहे हैं मुझे, मेरे में कुछ प्रॉब्लम है कि फिर अभी भी ठीक नहीं हुआ हूँ क्या मैं, या फिर मुझे इस तरीके नज़र से देख रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो नॉर्मली आप उसको ट्रीट करोगे देन ही विल फील गुड अबाउट इट। Now, sir, we generally avoid discussing anything related to self harm with kids. Even we've seen social media censors या जो social media के जो algorithms है, when there is any content that comes regarding self harm, probably they don't really promote that content. शायद उनको लगता है कि the viewers may get ideas. Of course, our intention is not to give any ideas, but it is to increase the awareness. So how should parents approach this particular discussion with their kids in case there are some early warning signs that they observe? So handling frustrations and the negative emotions, the intense emotions, overwhelming emotions, ये जब नहीं होता है तो वो उनको अलग अलग तरीके वो ढूंढना शुरू करते हैं। इट डजंट गिव देम प्लेजर, वो करने से थोड़ा सा उनके इमोशंस वो काम डाउन हो जाते हैं बिकॉज दैट एनर्जी इज़ डाइवर्टेड। तो आप उनको ऐसा नहीं है कि पूछ नहीं सकते, आप उनको पूछो कि कट लगा है,
कैसे लग गया, क्या हुआ, इट्स ओके, आप स्ट्रेस में लग रहा है फिर भी दिख रहा है, जितना आप पूछोगे इट्स नॉट, आप उनके दिमाग में आइडियाज़ डाल रहे हो, ठीक है, आप पूछ रहे हो इसका मतलब यू केयर फॉर देम, यू लेट देम नो, ठीक है। सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली थोड़ा कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, दे आर नॉट ओके विद सीइंग दोस थिंग, दैट्स द रीजन इट कैन बी, बट द मोर यू आस्क द मोर यू नॉर्मलाइज इट। और उससे बाहर निकलने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, दैट फीलिंग्स, और उनको दे डोंट नो, सुसाइड भी कोई एन्जॉयमेंट के लिए नहीं करता है, दे आर एट अ पॉइंट वेयर दे डोंट अंडरस्टैंड, लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि क्या हुआ था तब जिसकी वजह से उसने ये किया, या उसको भी नहीं पता होता कि क्या हुआ था। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स, वो लेवल तक जाने के पहले वार्निंग साइन आइडेंटिफाई करना और वो बात नॉर्मलाइज करना कि हाँ इसके बारे में बात कर सकते हैं, इससे बाहर आ सकते हैं। देर आर लॉट ऑफ हेल्पलाइंस, यू कैन मेक देम अवेयर ऑफ द हेल्पलाइंस की, काउंसलिंग के हेल्पलाइंस है, सेल्फ हार्म के हेल्पलाइंस है, सुसाइडल के हेल्पलाइंस है, इसके बारे में एक जनरल जब आप बात करते हो या स्कूल में अवेयरनेस हो जाता है, उनको पता चलता है कि इफ़ आई एम देयर एट, कि जहाँ पे मुझे हेल्प मिलनी चाहिए या नहीं मिल सकती, मुझे समझ नहीं आ रहा है, सो दिस इज़ वेयर आई कैन गो। सो वो जो गवर्नमेंट है या बाकी जो चीज़ें वो कर रहे हैं, बट यू हैव टू बी मोर अवेयर एंड टॉक मोर अबाउट ऑल्सो दैट। Now, towards the end of the discussion, I would like to get you to a point कि there are times when parents feel कि यार बहुत देर हो गई है. Now the child is say 18 years old, a lot of water has gone under the bridge. The child is an introvert now, or he or she is in a cocoon. So do you feel कि ऐसा कोई उम्र है या is there any such time frame to reinstate this conversation with their kids? सी इट्स नेवर लेट, कितना हेल्प हो पाएगा, क्या कर सकते हैं, वो दैट इज सेकेंडरी, बट ट्राई करते रहना और उसको ज़्यादा नॉर्मलाइज बात करना कि ये चीज़ है, इसको क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर लाइक ही हैज़ गॉन इन टू ककुन, इज ही हैप्पी देयर, इफ़ ही इज़ वेरी हैप्पी बीइंग इन ककुन, देन हम उसको नहीं चेंज कर सकते। इंट्रोवर्ट्स को हम मोस्ट ऑफ द टाइम देखते हैं कि इंट्रोवर्ट है ककुन में, बट ही इज़ हैप्पी डूइंग हिज ओन थिंग्स, राइट, ही गेट्स ड्रेन आउट इन पब्लिक। तो वो सारी चीज़ें उसको करना है, नहीं करना है, वॉट मेक्स हिम हैप्पी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हाउ ही वॉज एज अ चाइल्ड, क्योंकि ही हैज़ सीन वर्ल्ड, ही हैज़ टू अडेप्ट, ही हैज़ अडेप्टेड। जब उसको रिक्वायरमेंट लगी कि मे बी हिल बिकम लाइक दैट अगेन, मे बी वेन ही फाइंड दैट स्पेस और फाइंड हिज क्राउड कि हाँ ये मेरे जैसे लोग हैं, तो यहाँ पे मैं अपना आपको एक्सप्रेस कर सकता हूँ, तो हिल बिकम लाइक दैट। बट लेट हिम डू दैट, और वेट करना, पेशेंस रखना कि हाँ जब होगा तब देखा जाएगा, रादर देन वी डायरेक्टिंग कि पहले जा वैसा ही बन जा। अभी वो बना है, बेटर बना है कि नहीं बना है, इतना ही देखना है। और अच्छा कर रहा है, एकेडमिकली कर रहा है, दोस्तों के साथ कर रहा है, करियर वाइज कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो कि वो कर रहा है अच्छे से। सो उसका जो बचपन का पर्सनैलिटी वापस आएगा ज़रूरी नहीं है। स्कूल जाने के पहले सभी हाइपर रहते हैं, बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं, थोड़े स्कूल जाने के बाद डिसिप्लिन होते हैं, बट डिसिप्लिन इज़ ऑल्सो नेसेसरी। कंटिन्यूसली आप वही फेज़ में नहीं रह सकते हो, तो वो चीज़ को ध्यान देना ज़रूरी है। So now towards the end, sir, if you could help us summarize the red flags or the symptoms that we need to, see, or to help the parents to understand that kids are facing this particular situation and they need to trigger or initiate the conversation. जब पेरेंट्स बोलते हैं कि उनको हेल्प करना है, फर्स्ट हेल्प के लिए जाते हैं, व्हाट हैपेंस इज पेरेंट्स एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन हमको पोर्ट्रे नहीं करना है, दे नीड टू बी वल्नरेबल, दे वांट टू शो कि हाँ हमको भी होती है तकलीफ, आई डोंट नो हाउ टू हेल्प यू, लेट्स गो एंड टॉक टू टीचर, लेट्स गो एंड टॉक टू अ काउंसलर। तो ये जब होता है, लेट्स गो एंड टॉक टू योर फादर व्हाट टू डू अबाउट ऑल दिस, तो ये जब होता है ना, तो उनको भी समझ में आता है कि पेरेंट्स आर नॉट सुपर ह्यूमन्स, और दे आर नॉट सब चीज़ के लिए, तो इट्स ओके टू, आई हैव ऑल्सो बिकम लाइक दिस, राइट। और उसके बाद जब हम बात करते हैं उसके ये सारी चीज़ों के बारे में, ये विल फिगर आउट कि हाँ ठीक है, समथिंग हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, और उसके बाद क्या क्या करना चाहिए। सो यू मेक द किड पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, ये ऐसा ऐसा है, इसको क्या करना चाहिए। तो उसको अगर वो एक्सेप्टेबल है, उसको कितना उसमें से बाहर आना है, कितना उसके बारे में उसको बात करनी है। लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, बच्चे को लगता है कि अरे पेरेंट्स को बता दूं कि आई एम वल्नरेबल, कैसे बताऊंगा, उनको हर्ट होगा, या फिर उनको दे विल गेट स्ट्रेस, गुस्सा करेंगे मे बी. गुस्सा करेंगे, या फिर उनको लगेगा कि अरे बच्चा परेशान है, तो फिर दे विल बी मोर प्रोटेक्टिव, दे विल पुट मोर रेस्ट्रिक्शंस ऑन मी, दे विल कीप मोर वॉच ऑन मी, तो वो बताएगा नहीं चीज़ें, राइट। तो उस वहाँ पे दैट्स द रीज़न काउंसलर्स जो स्कूल के होते हैं मेक ओपन डिस्कशंस कि हाँ काउंसलर के पास क्यों जाते हैं, क्या हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक है तभी काउंसलर के पास चला गया, ऐसा हो जाता है, काउंसलर के पास जा रहा है मतलब प्रॉब्लमेटिक है उसको इसका। To avoid this fact कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये ऐसे कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली, बट वो वही तो चीज़ है कि आपकी बेटी, आपका बेटा, आप उसके फादर हो, आप उसकी ज़िंदगी नहीं जी सकते हो।
और आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी सिचुएशन सारी अलग है, उसके जो चीज़ें वो देखेगा, वो जो चीज़ें करेगा वो बहुत अलग है। आप उसको सिर्फ वैल्यू सिखा सकते हो, आप उसको सिर्फ एक तरीका सिखा सकते हो कि इसको ऐसे हैंडल करें, या आप उसको एक बेसिक चीज़ बताते हो कि हाँ, इस चीज़ को, प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करो, या फिर अगर इफ़ यू आर फॉलिंग यू विल हैव टू गेट अप। ये चीज़ आप सिखा सकते हो, आप उसके सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो। आप स्ट्रांग हो इसलिए आपका बच्चा स्ट्रांग होगा ये ज़रूरी नहीं है, या फिर आप उसके दूसरे पेरेंट पे ब्लेम करो कि आपकी वजह से ऐसा है। पेरेंटिंग मतलब दोनों मिलके है। वहाँ पे अगर कुछ हो रहा है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ध्यान रखना। और बाद में क्या हो जाता है, एक पॉइंट आ जाता है, फिर वो लाइक आई सेड कि व्हेन यू बिकम 20, जब विल टॉक नेक्स्ट अबाउट इट, पेरेंट्स वांट देयर किड्स टू बी देयर पेरेंट्स, वो भी होता है। तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो वो प्रेशर बच्चों को बच्चे की लाइफ के हिसाब से चलनी चाहिए। आप बच्चों को जल्दी मैच्योर करोगे तो दैट विल नॉट वर्क फॉर देम। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि देयर इज़ नो प्रॉपर हेल्दी एनवायरनमेंट, तो बच्चे अपने आप मैच्योर हो जाते हैं, अपने आप खुद का ध्यान रखना शुरू कर देते हैं, बट आप उसका बचपना छीन रहे हो। तो उसको वो डिप्रेस्ड है ये लेबल लगाना ज़रूरी भी नहीं है। आप बात करो। बहुत मोस्ट ऑफ बच्चों में यही होता है कि उसको लेबल करना अच्छा नहीं लगता है, कि इवन फॉर स्पेशल चाइल्ड समथिंग, पहले इनिशियल स्टेज में ऐसा होता ही नहीं, अरे ये सारी चीज़ें, मोबाइल तो अच्छे से चलाता है, ABCD क्यों नहीं आ रहा। ये यहाँ से शुरुआत होती है एक्सेप्टेंस आने के लिए। सो दे डोंट वांट टू सी। खुद का रिफ्लेक्शन बच्चों में देखोगे तो वो प्रॉब्लम आएगा। आप बच्चों को इंडिविजुअल की तरह देखो। ऑब्वियसली आपका बच्चा है, आप चाहते हो उसके लिए सब अच्छा हो, बट वो क्या चाहता है, उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, कि उसको कितना एक्सप्लोर करना है, कितना सपोर्ट लगना है, कितना नहीं लगना है। कुछ बच्चे अपने आप ही कुछ चीज़ें कर लेते हैं, कुछ बच्चे कुछ चीज़ों में अच्छे होते हैं, और वो अगर नहीं हो रहा है तो यू हैव टू वॉच फॉर द वार्निंग साइंस। अब जितना उसके बारे में बात करें उतना वो नॉर्मलाइज होगा। और ये कॉन्वर्सेशन और बच्चे के साथ बात करना, इवोल्यूशन, ये हमको भी अडेप्ट करना पड़ेगा उनके हिसाब से। तो पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है, सो दे आर ऑल्सो इन अ पिकल। सो लॉट ऑफ द टाइम्स kid doesn't need counseling, kid doesn't need he is not in depression or his behavior changes are there, they bring kid to the counseling or this thing। और हमको रियलाइज होता है प्रॉब्लम पेरेंट्स के तरफ से, उनको नहीं पता चल रहा कि कैसे मैनेज करना है। नॉट दैट दे आर बैड पेरेंट्स और समथिंग लाइक दैट, दे आर गुड पेरेंट्स, बट दे डोंट नो, और दे सी द चाइल्ड एज समथिंग डिफरेंट, और बच्चा कुछ अलग है। तो एक बार व्हेन दे सी दैट पर्सपेक्टिव, दे विल एक आध सेशन में ही दे किड ऑल्सो बिकम्स फाइन, पेरेंट्स ऑल्सो बिकम फाइन। उसको लेबल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा है। Certainly, I think this discussion has opened a lot of doors to conversation. In Squid Game season 3, if you guys have watched it, player 456, he says that we are all humans and not horses. हम इंसान हैं, हम घोड़े नहीं रेस के. I think the key takeaway here is that the parents need to accept that we are humans, we are not superhumans, and there is no need to be over friendly with your kids. You can be very close to them, you can have an open discussion with them, keep the doors of conversation always open with them. And I think it's very essential, it's going to be essential and helpful if parents really are able to identify those early warning signs to deal with these issues correctly. In the next episode, we will be discussing with Dr. Pranavjeet about the issues that are faced by people, say between the age groups of 25 to say 40. ये जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, this is going to be a series where we'll try to identify mental health concerns between various age groups so that we can create more and more awareness. Do stay tuned for that particular episode. Please like this episode. इसको share करिए with your friends. Subscribe to our channel. It's going to be free. And please comment करो and let us know what kind of topics you would like to listen to. I will ensure that I get guests to discuss this on those topics with me. I hope you like this episode. Thank you so much.